So first, to understand European Union and the evolution of European Union and the present Brexit, its impact upon European Union, the Lisbon Treaty and other negotiations which are going on, and the 7 major entities under European Union. First, I want to explain you related to the rough map of European Union. So roughly what these all countries, some rough mind map that you should know related to the European Union is, first we have Spain connecting Mediterranean Sea, then we have France, then we have Germany, Belgium, Netherlands, Switzerland and this Italy that we have. So these are the 5-6 countries जिनका mind map आपके दिमाग में होना चाहिए. So we have Spain, then we have France, then we have Italy, then we have Belgium, then we have Germany, then we have Netherlands. So these are the countries. Why? Because the starting of European Union started from these countries only. Second World War आया था, Marshall Plan आया था, to implement to improve the socio-economic conditions of the world, the Second World War ravaged countries. After Second World War in 1952, we also remember Second World War and First World War. The major problem between France and Germany was there was a valley जहाँ पे बहुत सारा coal वगैरह मिलता था. Ruhr Valley was there, Rhine River was there, etc. So in 1952, they set up European Coal and Steel Community. ECSC was set up, between which all countries जो भी map बनाया था. Acronym बना लेते हैं because we know that France and Germany में major fight था वहाँ पे. So France is one of the country and the major problem was with respect to the coal and steel. Steel means mineral related कुछ होगा. So from steel we have a word that is known as bling. Bling means metal से कुछ ज्वेलरी बनता है, उसको हम bling कहते हैं. So these are the countries, these 6 countries they combined together and then they set up the European Coal and Steel Community is there. So out of this bling क्या है? Belgium है. Then we have Belgium, Italy, Netherlands, Germany and Luxembourg. So these countries they combined together and then they set up this 1952 में European Coal and Steel Community. फिर 1957 में European Economic Community बनाया. This was only for the promotion of coal and steel. The same countries combined together and for economic integration they set up a new community that is known as European Economic Community. So एक word यहाँ से गायब हो गया, ECSC से EEC बन गया. Then finally in 1965 these 2 entities they combined together, ठीक है, and then they set up the European communities. So पहले coal and steel community, फिर economic community, दोनों merge होके 6 countries, now they were regarded as the European communities or this is known as Treaty of Brussels. Merge किया, member expanded in 1973, 81 etc. and all. Finally in 1992 according to the Maastricht Treaty also known as the European Union Treaty, and in 1993 European Union was set up. So which all years which we need to remember, आगे नहीं बता रहा हूँ कौन सा Treaty of Paris था, कौन सा Treaty of Rome था, handouts में है but I don't think so it's relevant from exam perspective. 52 में स्टार्ट हुआ था. प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था या लास्ट टू लास्ट ईयर में SDG फर्स्ट टाइम कौन सी ट्रीटी में मेंशन था या कार्बन क्रेडिट्स फर्स्ट टाइम कहाँ पे मेंशन थे. सो इन केस दे आस्क सच क्वेश्चंस, बस इसको सुन लेंगे रफली आपको याद रह जाएगा. So in 1992-93, by Maastricht Treaty, European Union was set up in 1993. Treaty was signed in 92, European Union was set up in 1993. Then which 2-3 major things were there in the European Union? European citizenship diya, they merged all these communities and then they were regarded as the European Union and European Central Bank was set up. Then 1999 में Eurozone concept आया. वो monetary union पढ़ा होगा ना, when we signed the free trade agreement के components, economic integration में common market, economic union जो बनता है. So finally in 1999 Eurozone was set up and euro as a common currency. But you need to remember there are 27 countries in European Union. 28 था, Britain बाहर गया तो now we have 27 members. Not all the members are part of Eurozone and not all the members of Eurozone are part of European Union. So दोनों mutually exclusive हैं. So we have these are the Eurozone countries and these are European Union countries. Few countries are common, few countries are different. So monetary union, euro was regarded as a common currency. And then finally in 2007 ये क्राइसिस का टाइम चल रहा है, समझो 2008 क्राइसिस आया था एटसेट्रा एंड ऑल. उस टाइम पे दे साइंड द लिस्बन ट्रीटी अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी टॉक्स अबाउट हाउ टू टेक एग्जिट आउट ऑफ दिस. एंड देन मोर सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बना था.
Now to understand more centralized mechanism, first let's understand what is the mechanism through which the whole European Union, you need to understand the context. 1965 में start हुआ था majorly, और if you will go to 1950s में ही start हो गया था, 52 में for the first time, 60-70 years से concept चलता चला आ रहा है, और उसमें for the first time a country has seek exit, that is Britain. It means the system should be complex, there should be enough checks and balances, because when we talk about even at the central government level, India में ही because of regional development or regional political parties we have lot of tussle. अब सोचो नेशन से ऊपर जाके एक कंसेप्ट आ रहा है, एंड एट द इंटरनेशनल लेवल यू हैव क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज. इट मींस द सिस्टम शुड बी कॉम्प्लेक्स इनफ. That is the only way through which you can maintain the checks and balances. So these are the 7 major organizations under European Union. एक है यूरोपियन पार्लियामेंट, अभी बस याद कर लेंगे, बाद में बताता हूँ. फर्स्ट वी हैव इज यूरोपियन पार्लियामेंट. एज द नॉमेनक्लेचर इटसेल्फ सेज कि यहाँ से पे कुछ लेजिस्लेटिव रिलेटेड कुछ काम हो रहा होगा, कुछ लॉज वगैरह बन रहे होंगे इसके अंदर. देन वी हैव यूरोपियन काउंसिल. नाउ देयर इज ए confusion between European Council and Council of European Union. अब concepts को कैसे दूर करेंगे और confusion को कैसे दूर करेंगे? European starts first and Council comes later on. In the second one we have Council of the European Union. Now when we are talking about Europe first, it means कुछ तो national level के head जो होंगे वो उसके member होंगे. ये सब सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ. In European Council it is a political body, 27 members, all the heads of 27 countries, they represent under the European Council. Simple है. So in which direction European Union should go, their political direction is decided by European Council. And which all are the members of European Council? 27 heads of 27 countries. Next आता है अपना Council of the European Union. अब काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन में नेशनल मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर 27 कंट्रीज के, वो दे आर द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन. इन यूर टर्मिनोलॉजी यू कैन रिमेंबर काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होता है? 2 काम होता है. एक तो वट एवर द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड, उसके लॉज एंड ऑल को वो इंप्लीमेंट करता है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. In India, I'm just comparing I'm just giving you an analogy. In India, the role of the Council of Ministers is 2. First one is, can Council of Ministers make some laws? हाँ बनाते हैं ना, executive से delegated legislation से बना सकते हैं अपन. So there are 2 roles of Council of Ministers. First one is it implements the laws which are created by Parliament, and second one is sometimes they can also make the laws through delegated legislation. सेम काम यहाँ पे चलेगा काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का. इन यूअर वर्ड्स यू कैन रिमेंबर इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जितनी भी 27 कंट्रीज हैं एरिया स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का एक काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हो गए 27, एग्रीकल्चर का 27 मेंबर्स. सो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज, दे हैव रिप्रेजेंटेशन हियर. नेक्स्ट आता है यूरोपियन कमीशन. So European Commission will have it is a kind of a body. अब अगर प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर कि वी हैव द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. वो ही लॉ प्रपोज करते हैं, वो ही उसको इंप्लीमेंट करते हैं. सो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारा पूरा नहीं होता. वी नो ना देयर आर 3 आर्म्स, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट connected to each other. तभी actually doctrine of checks and balances आएगा. But in case of India we have Article 50 which talks only about judiciary and executive. In India we don't have a doctrine of separation of power between legislature and executive, but ideally होना चाहिए. So India में तो नहीं है, यहाँ पे है. So we have a body that is known as European Commission responsible for 2 things. एक तो वो जो भी लॉ आने हैं वो प्रपोज करेगा, इनेक्ट नहीं करेगा. सो यूरोपियन कमीशन विल कम अप कि यार ये लॉ होना चाहिए. पास कैसे होगा? पार्लियामेंट करेगा. प्रपोज एंड इंप्लीमेंटेशन, दीज आर द 2 फंक्शंस ऑफ यूरोपियन कमीशन. देखो समझ नहीं भी आ रहा है, सो आई विल एक्सप्लेन यू 2-3 टाइम्स, जस्ट ट्रस्ट मी. ओके,
So the role of European Commission is to propose the legislations as well as to implement the legislations. Next आता है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन. दो तरीके के कोर्ट हैं इसमें. एक जनरल कोर्ट है. जनरल कोर्ट सपोज एज एन इंडिविजुअल आई हैव सम इशू विद यूरोपियन कमीशन, सो आई कैन गो. सेकेंड इज इंस्टीट्यूशन वर्सेज इंस्टीट्यूशन. So we have two courts. First one is institution versus institution and second one is individual versus institution. Then आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक. अब वो मॉनेटरी यूनियन है, सो कॉमन करेंसी भी है बहुत सारे कंट्रीज में एंड ऑल, सो यू रिक्वायर ए सेंट्रल बैंक टू मॉनिटर दैट. एंड देन लास्ट आता है कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स. कोर्ट ऑफ ऑडिटर क्या करता है? नाउ बिकॉज दैट यू आर यूजिंग द फंड, अब पार्लियामेंट है तो कुछ फंड भी बनाएगा, ये डिवॉल्व करेगा. So who is going to audit that fund, that budget outlay? So that is the responsibility of court of auditors. Next level पे जा रहा हूँ. This is the basic level of information which I gave you. Next level of information is everything is available in the handouts. ठीक है? Next level is European Parliament is directly elected by the citizens of European Union for 5 years. So European citizens दो तरीके के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. फर्स्ट वन इज देयर लोकल, जो डेमोक्रेसी चल रहा होगा उस वाले के लिए, हेड ऑफ द स्टेट एटसेट्रा. एंड द सेकेंड वन इज मेंबर ऑफ यूरोपियन, उसको MEPs बोलते हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. सो पहले वो 750 प्लस थे, अभी 705 MEPs हैं. कौन इलेक्ट करता है उसको? द सिटीजन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. इट मीन्स एनी कंट्री सिटीजन will have the power, and which country will have how many MEPs, that depends upon the population. So for example, if we have 27 countries, उसमें से Germany है such a big country, so Germany will have 96 हैं, 96 MEPs. Similarly other countries will have MEPs on the basis of the population of that country. So we have European Parliament which is directly elected by the citizens. सो अगर डायरेक्ट इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, सो MEPs जो होंगे वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड. सो अगर कंट्री को नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर नॉट सिटिंग विद ईच अदर, कि पास पास में बैठ गए, जर्मनी वाले यहाँ आ गए, सब हिंदू एक साथ चल रहे हैं, सब मुस्लिम एक साथ चल रहे हैं, एटसेट्रा. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन. द सेकेंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज, अब चलते हैं अपन इस पे. आई जस्ट नीड योर 3-4 मिनट्स 100% कंसेंट्रेशन, बाद में लिख लेना. सो द यूरोपियन यूनियन 7 कंपोनेंट्स बताया, नीचे के तीनों वाले आर नॉट मच रिलेवेंट, फर्स्ट के 4 वाले आर वेरी रिलेवेंट. दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 एग्जीक्यूटिव हैं और 2 लेजिस्लेटिव हैं. एग्जीक्यूटिव में द फर्स्ट वन वी हैव इज द यूरोपियन काउंसिल. एज आई टोल्ड यू दैट इन दिस यूरोपियन कम्स फर्स्ट. सो इफ यूरोपियन कम फर्स्ट, इट मीन्स हेड होंगे इसके अंदर. Europe is the priority. So this is the highest level of decision making is taken place and it sets the political agenda of the whole European Union. कौन कौन member होते हैं? 27 heads of the respective countries, they are the member of this. So all the EU 27 national leaders are part of the European Council. तो उसने तो बोल दिया कि मंदिर यहीं बनाना है, अब उसको implement कौन करेगा? So उसके लिए तो कुछ और bodies चाहिए, तो कुछ तो हमें few other bodies are there. इम्प्लीमेंटेशन का काम सब आ जाता है यूरोपियन कमीशन के पास. बोला ना एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, उन्होंने तो लॉज बना दिए, इंप्लीमेंट करना ईदर डन बाय यूरोपियन काउंसिल, बट यहाँ पे तो हेड है, हेड विल नॉट इंप्लीमेंट. सो द अदर बॉडी दैट इज यूरोपियन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द लेजिस्लेशंस. अब लेजिस्लेशन बनाता कौन है? ये 2 बनाते हैं, इसमें आएंगे धीरे धीरे. ठीक है? सो यूरोपियन कमीशन प्रपोजेस, इसके बाद यहां से जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के पास, प्रपोजल ऑफ एनी लॉ. तो यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन दोनों के को डिसीजन बोलते हैं इसको. बोथ ऑफ देम विल डिसाइड कि यस ये लॉ बनना चाहिए, ये लॉ नहीं बनना चाहिए, एंड देन फाइनली इट विल बी इंप्लीमेंटेड अगेन बाय द यूरोपियन कमीशन. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो 27 कमिश्नर्स बना रखे हैं इन्होंने. अब ये 27 कमिश्नर्स जो हैं वो आते कैसे हैं? सो द हेड ऑफ द स्टेट, यूरोपियन काउंसिल वाले उनको नॉमिनेट करते हैं, बट फाइनली यूरोपियन पार्लियामेंट विल अप्रूव. सो दीज 27 कमिश्नर्स, मतलब हर कंट्री का एक पर्सन होगा.
कैसे आएगा? यूरोपियन काउंसिल विल नॉमिनेट दैट पर्सन फ्रॉम दैट कंट्री, बट फाइनली विल बी अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट. सो ये हमारे हेड हो गए. यहाँ पे एक यहाँ पे यूरोपियन कमीशन का एक प्रेसिडेंट भी होगा. सो 27 + 1 28 मेंबर हो गए यहाँ पे. नेक्स्ट आता है इन यूरोपियन कमीशन. नाउ बिकॉज दे आर अप्रूव्ड बाय यूरोपियन पार्लियामेंट, एंड यूरोपियन पार्लियामेंट आई टोल्ड यू डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है इस बॉडी का. इट मीन्स यूरोपियन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं, फॉर देम European Union will have more weightage. They will think about European Union first in comparison to their individual host country. So they actually runs on the principle of a promise, and that promise they accepted that for us European Union will get priority in comparison to our national interest. And the last we have is they represents EU around the world at the summits. होते हैं ना दैट इन दिस पर्टिकुलर यूएन में, इस कंट्री उस कंट्री में EU विल हैव अ रिप्रेजेंटेशन. सो विच बॉडी? यूरोपियन कमीशन विल हैव द रिप्रेजेंटेशन. जैसे भी डिस्कस करते हैं ना कि यार इन ऑल द इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस RBI विल रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिमिलरली आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन रिप्रेजेंट्स EU इन ऑल द इंटरनेशनल बॉडीज. अब आते हैं अपन लेजिस्लेटिव बॉडीज में. इन लेजिस्लेटिव बॉडीज एक हो गया यूरोपियन पार्लियामेंट, एज आई टोल्ड यू डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द EU सिटीजन्स. 705 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, पॉपुलेशन वाइज डिवाइडेड है. जर्मनी का मैक्सिमम है 97, बट दे कैन नॉट प्रपोज लेजिस्लेशन. चेक्स एंड बैलेंसेस आ रहा है यहाँ पे. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. नेक्स्ट आता है सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट. ऑफ कोर्स द होल पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन 50 करोड़ के आसपास की उनकी पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर इंडिया. नेक्स्ट आता है रोल क्या है पार्लियामेंट का, जो इंडिया का है, लेजिस्लेट करना, बजट देना, एटसेट्रा एंड ऑल. नेक्स्ट फोर्थ एंटिटी वी हैव इज द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन. याद करने के लिए बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से याद कर लो इसको. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, उसका काम क्या होता है? वो भी लॉ बनाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में. इट मीन्स यहां से भी पास होना पड़ेगा आपको. Here also we have 27 national ministers in the policy area. Policy area means agriculture के ये 27 हो गए, फाइनेंस के ये 27 हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स के ये 27 हो गए. सो इनमें ना 20-22 एरियाज इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं. In all these 22 areas there will be council of the European Union, 1 2 3 4 5 6 etc. So each country will have representation, because यहाँ तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया और यहाँ इंडिविजुअल कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया. फॉर एनी लॉ टू बी पास्ड, एनी लॉ प्रपोज्ड बाय यूरोपियन कमीशन, फिर यहाँ पे आएगा इट नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ दीज बॉडीज, यूरोपियन पार्लियामेंट से भी एंड द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन से भी, दोनों से पास होना चाहिए. इंडिया में भी तो ऐसा होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होगा तभी तो जाएगा. नेक्स्ट, द पर्पस इज दे नेगोशिएट एंड अडॉप्ट द EU laws, the co-decision with the parliament, and they are responsible for developing the European Union foreign policy, security policies, etc. and all. So this is again the roles and functions of these four major entities. एक बार वापस से रिवाइज कराता हूं आपको in the next diagram. Yeah. Coming back to this, first start करते हैं the citizens of the member state. Now citizens of the member state, first they will directly elect the members of European Parliament. पहले समझ लो, बाद में लिख लेंगे. The citizens of the member state, 27 member states, earlier it was 28, Brexit 27 now. So these 27 members, they directly elect the 705 MEPs, member of European Parliament, every 5 years. Second, they elect their respective parliaments. Respective parliament भी तो होगा, and from their respective parliament and the other members of the state, उनके 3 काम है. एक आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स डिसाइड करने, उसमें भी हर कंट्री से 2-2 जज बुला लिया आपने. सेकेंड वर्क आता है आपका यूरोपियन काउंसिल. यूरोपियन काउंसिल में तो हेड ही आ जाता है, सो हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दिस इज द सेकेंड रोल ऑफ देयर पार्लियामेंट. And the third role is the Council of European Union. So Council of Minister बताया था ना, 20-22 sectors में each country will have one representative of that sector.
एग्रीकल्चर का एक, फाइनेंस का एक, एक्सटर्नल बॉडीज का एक, क्लाइमेट चेंज का एक, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है कि नाउ हाउ दीज एंटिटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तो सिंपल है, दो पार्ट है उसके, इंस्टीट्यूशन वर्सेज इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन वर्सेज द इंडिविजुअल सिटीजन्स, फिनिश। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑल्सो फिनिश। एनीथिंग रिलेटेड टू द कॉमन करेंसी, कॉमन मॉनेटरी यूनियन एटसेट्रा एंड ऑल, दो वहां फिनिश हो गए, बचे अपने पास 5। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स भी सिंपल है, whatever will be the decisions of two legislative bodies। अब लेजिस्लेटिव बॉडी क्या क्या है, एक तो यूरोपियन पार्लियामेंट है जो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, और दूसरा काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। दोनों के आफ्टर वट एवर डिसीजन दैट दे हैव डिसाइडेड उसका ऑडिट करना है। अगेन अपने पास बचता है यही 3 मेजर पार्ट। चलता कैसे है, यूरोपियन काउंसिल जो हेड है, हेड वाला नॉमिनेट करता है मेंबर्स ऑफ यूरोपियन कमीशन, but finally they are approved by parliament, and whatever the laws which will be implemented, which will be legislated, वो कौन स्टार्ट करेगा, कौन प्रपोज करेगा, only one entity, that is European Commission will have the power to propose। after proposal, after this initiative, it will go to European Parliament and Council of EU, when both of them will decide, needs the consent of both the organizations, that is why it is known as co-decision। once approved, one passed by all, then again it will go back to European Commission, वो इसको implement करेगा। implementation के बाद जो audit होगा वो European Court of Auditors कर देगा। ये हो गया सिंपल भाई। अब बताओ, अब भी कुछ डाउट है तो एक बार हैंडआउट से और पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो देख लेंगे, ठीक है। चलो भाई, पेज नंबर 41, यूरोपियन यूनियन, EU एंड ब्रेक्जिट। सो द ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड, देखो फेज बाय फेज में आपको निकलना भी होगा तो प्यार मोहब्बत से जाना पड़ेगा। सो 2 years + 11 months, ऑलमोस्ट 3 years का टाइम था ब्रिटेन के पास टू एग्जिट फ्रॉम दिस। सो इन 2016 में रेफरेंडम हुआ था इन विच दे डिसाइडेड, आफ्टर विच दे हैड टाइम टिल दिसंबर में 2020 दे फाइनली डिसाइडेड, एग्जिट हो गया। सो द ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड रिसेंटली एंडेड ऑन 31 December 2020, and post free trade deal the EU-UK trade and cooperation agreement has been signed। इस TCA के अंदर कंपोनेंट्स अभी फिक्स्ड नहीं है, इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। UK had formally quit the European Union on 31 January 2020, the first country to do so। About Brexit, so coin है ब्रिटेन प्लस एग्जिट से UK ब्रिटेन joined EU in 1973, बोला ना 73, 81 एटसेट्रा में एक्सपेंशन हो रहा था। Then however Britain voted to come out of EU in 2016 referendum। In 2017 UK invoked Article 50 of the European Union Lisbon Treaty and initiated a 2 years negotiation process to withdraw from EU। Next आता है यूरोपियन यूनियन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, वो पढ़ लेते हैं। सो यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल क्यों, हेड थे तो यूरोपियन काउंसिल जो हेड हैं वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मॉनेटरी यूनियन है, इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनियन ऑल्सो। सो यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ नाउ 27 members primarily located in Europe। Then EU has developed an internal single market। जो internal single market किया है उसने through a standardization system of laws that apply in all the member state। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम। ये सारे हेडक्वार्टर इनके 3-4 पार्ट्स में ही हैं, या तो इसमें है नीदरलैंड में है, either they are in नीदरलैंड और बेल्जियम और जर्मनी और फ्रांस। 6 कंट्रीज थे स्टार्टिंग में, उसमें से ये 4 मेजर कंट्रीज हैं। जितने भी मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको वो सब यहीं पे मिलेंगे। सो इन दीज 4 कंट्रीज ओनली मेजॉरिटी ऑफ द हेडक्वार्टर्स आर देयर। One second. Yeah. So we have 1, 2, 3, 4 and 5। जो इनिशियल कंट्रीज थे उसमें एक लग्जमबर्ग था, एक इटली था, फ्रांस ब्लिंग। नेक्स्ट द बैकग्राउंड इज अगेन द डिसीजंस आर यूनानिमसली दे आर डिसाइडिंग। सो द बैकग्राउंड इज इन फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। In 1952 European Coal and Steel Community was founded under Treaty of Paris by 6 countries, France and this Bling। Then 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आया, वो फोकस अपॉन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगेन बाय 6 फाउंडिंग मेंबर्स सेम। 1965 में दोनों मर्ज हो गए एंड नोन एज द यूरोपियन कम्युनिटीज।
73 में the European communities was expanded, etc., and all these countries they become member. Then 1992 finally by Maastricht Treaty European Union was established. Then next is 1999 में Euro was established as a monetary union, and present there are 19 out of 27 member countries have adopted the Euro. Then आता है Lisbon Treaty 2007 में साइन हुआ, 2009 में finally it came into force, and then it has amended the existing Maastricht Treaty जिसने यूरोपियन यूनियन बनाया था, और Treaty of Rome जिसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाया था. एंड देन फाइनली 2012 में जब सबको बांट रहे थे तो उसको भी इन्होंने नोबेल पीस प्राइज दे दिया, पता नहीं क्यों. एंड देन related to this we have Schengen agreement. The purpose of the Schengen agreement is not related to European Union, both are different. Schengen का purpose है so that open borders without passport. Again, not all the members of European are part of Schengen and not vice versa. वो next page पे दिया है that not all EU members are part of Schengen area. Some non-EU countries are also part of the Schengen area. For example, ये स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड शुरू से ही अलग रहा है भाई. अगर आप देखोगे ना, although it is in the hub, these 6 countries were there but Switzerland was never. उसने neutrality दिखा है, ठीक है. So we have Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland are part of the Schengen area. And then आता है how EU is governed. उसको एक बार पढ़ लो. And the other institutions of EU also, ECB, Court of Justice, Eurogroup, etc., and the Council of Europe. So don't get confused between European Council and Council of Europe. उसको पढ़ लो फिर आप, पूरे यूरोप को पढ़ लो.